In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Well, students, I'm your teacher of subject English. My name is Humaira. Let's start today's lecture. Let me tell you about the day and date. Today is 30th of November 2020 and the day is Monday. Let's see the unit. And the unit number is 7. And the unit name is Clever Fox and Greedy Wolf. Clever Fox and Greedy Wolf, as you know, you must be very familiar with this name of the unit because we have already read this story in the class. Clever means a person who has the abilities of the intelligence, like a person with a sharp mind, okay? And greedy means जो कि कोई और ज़रा डिज़ायर करे, हु हैज़ द डिज़ायर टू हैव मोर एंड मोर थिंग्स, ओके, जो लालची होता है उसको कहते हैं ग्रीडी. एंड क्लेवर मीन्स जो कि बहुत चालाक होता है. द टॉपिक ऑफ द यूनिट क्लेवर फॉक्स एंड ग्रीडी वॉल्फ इज़ complete the sentences by using words. It means that we are going to do the exercise work which is given on your book. So let me tell you some of the theme of the unit 7 so that you can remind all the stories in your mind. Okay, well students, as you can see the first page of unit 7, you can see the name as well, but I will tell you by the pictures, by the images which are given here on your book and which you can see in here. But you can see here, and you can see there are two animals. One is the wolf and the other one is the fox. So you can assume by the picture that they both are talking with each other, like they are trying to say something. अब आप पिक्चर को देख के assume कर सकते हैं they might discuss something, they might asking something. And you can see कि जो wolf है ना, wolf is in grey color and the fox is in brown color. Okay, so in this picture actually the wolf is asking to the fox that I'm very hungry, I want to eat something, why don't I eat you? And fox became very frightened. Fox said that no, don't eat me, dear wolf, don't eat me. And as you know from the story that the fox is very clever and the wolf is very greedy. Clever means वो बहुत sharp minded है. The fox is very intelligent. Instantly the fox had an idea. Let's see the next picture. The fox had an idea. The fox asked the wolf that I will give you something to eat. I will definitely find something for you so that you can eat up. So the wolf agreed because wolf is very greedy. Wolf got agreed. And then the fox took the wolf to some house. And you can see here there is a lady who is baking the cake and who is putting the cake on the shelf. And there is a kitchen in the there is a window in the kitchen. From the window you can see the both animals are watching inside because they are planning to do something. So let's see. All right, if you see from the outer side of the house, you will let know कि जो fox है ना, fox is trying to climb up the window of the house, and the fox is trying to enter in the kitchen from the way of the window, through the window, and the wolf is watching. तो wolf ने क्या किया? Wolf did the same as the fox has done before. यानी कि जो fox ने किया वही wolf करने जा रहे हैं because they are actually hungry and they both are ready to eat the cake. So the जो lady थी ना जिन्होंने केक बनाया था, she left the kitchen by putting the cake on the shelf. यानी कि वो तो चली गई लेडी, ठीक है. अब क्या हुआ, वॉल्फ ने क्या किया, यम यम करके सारा का सारा केक खा लिया. यू कैन सी देयर आर
there are many pieces of the cake. They have cut the cake into different and many pieces. Okay, some are big, some are small. Okay, fox is eating and the wolf is also eating. लेकिन वॉल्फ को देखें कि वॉल्फ को बहुत मज़ा आ रहा है केक खाते हुए. वेल सडनली क्या होता है कि वो जो लेडी होती है ना, द लेडी केम इन टू द किचन एंड द वुमेन स्टार्टेड टू शाउट ऑन बोथ ऑफ देम. और वो कहती हैं कि व्हाट हैव यू डन, आप दोनों ने क्या कर दिया, यू हैव ईटन माई केक. यानी कि आई बेक द केक फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्रेंड्स, एंड यू बोथ हैव ईटन द केक. सो क्या करता है फॉक्स जो होता है ना, फॉक्स जल्दी जल्दी से बाहर निकलता है. ठीक है, और जो फॉक्स थोड़ा क्लेवर होता है, फॉक्स ने क्या किया, फॉक्स थ्रू द 3 pieces ऑफ केक आउटसाइड द विंडो. यानी कि उसने ज़्यादा केक नहीं खाए. He just had an idea that I will throw the pieces of the cake outside the window so I can climb or I can run away from the kitchen window easily. लेकिन जो वॉल्फ होता है ना, actually it was very hungry और very greedy. वो इतना greedy था कि उसने 8 केक के पीसेस खा लिए. जब उसने खा लिए तो उसका टम्मी इतना मोटा हो गया कि वो क्रॉस ही नहीं कर सका, विंडो में स्टक हो गया वो. ठीक है, सो यू कैन सी कि एंड पे यही होता है कि फॉक्स जो है वो भागने में कामयाब हो जाती है और जो वॉल्फ है वो स्टक हो जाता है. ठीक है. वेल स्टूडेंट्स, इफ़ यू कम टू द पेज नंबर 62, देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू द पार्ट ए. कंप्लीट द सेंटेंसेस. कंप्लीट करने आपने सेंटेंस को. यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. यानी कि जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो उसके अंदर वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, एकदम से आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, विच वर्ड यू नीड टू पुट दैम. ओके. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कंप्लीट द सेंटेंसेस कि सेंटेंस क्या होता है. ठीक है. सो इन सेंटेंस वी मस्ट हैव 3 थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपको पता है कि क्या होता है. इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ नाउन. ये नाउन है जो काम कर रहा है. नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग. ठीक है. ही, शी, इट, वो प्रोनाउन, वो नाउन की जगह लेते हैं. ठीक है. अब प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, ये दोनों सब्जेक्ट होंगे. ठीक है. और फिर उसके बाद वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड्स. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द एक्शन वर्ड्स आ जाएंगे. एंड देन ऑब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है, जिसके ऊपर हमने जो काम हमें पता था वो सब्जेक्ट के थ्रू होने लगे. ठीक है. वेल स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंसेस वन बाय वन फॉर यू. देन यू हैव टू टेल मी, you have to assume the words at once, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि वाकई आपको स्टोरी पता थी. ठीक है. नंबर 1 इज़ द फॉक्स वॉज डैश ऑफ द वॉल्फ. तो क्या हुआ था इन द स्टार्टिंग पेज, द फॉक्स वॉज डैश ऑफ द वॉल्फ. जो फॉक्स था ना वो डर गया था. किससे? भेड़िए से, वॉल्फ से. ठीक है. द फॉक्स डैश द वॉल्फ टू एन ओल्ड हाउस. ठीक है. द फॉक्स यानी कि फॉक्स जो है वो ले गया था वॉल्फ को एक पुराने घर में. द वुमेन वॉज डैश केक्स ऑन अ शेल्फ. यानी कि वुमेन जो थी वो क्या कर रही थी, वो केक को शेल्फ के ऊपर रख रही थी. द वुमेन वेंट आउट डैश. ठीक है. यानी कि जो वुमेन है वो कहाँ से बाहर गई थी केक को शेल्फ पे रख के? किचन से. द फॉक्स जम्प्ड डैश. यानी कि फॉक्स ने जंप किया था. नाउ यू कैन सी द स्टेटमेंट्स आर इनकम्प्लीट. द सेंटेंसेस आर इनकम्प्लीट मीन्स द फॉक्स वॉज डैश ऑफ द वॉल्फ. अब हमने इसको कंप्लीट कैसे करना है? देयर आर सम वर्ड्स मिसिंग विच यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इन द स्टोरी. ठीक है. आपने स्टोरी को पढ़ना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द सेम सेंटेंसेस विच आर ऑलरेडी गिवन इन द स्टोरी. उसको आपने अंडरलाइन करना है. सो यू विल फाइंड द मिसिंग वर्ड. आपको वो वर्ड मिल जाएगा. अब इसमें मिसिंग क्या है? जहाँ पे स्पेस दी हुई है. द फॉक्स वॉज डैश ऑफ द वॉल्फ. यानी कि जो फॉक्स है ना वो डर गया था. तो अब आपने क्या लिखना है? फ्राइटेंड. FRIGHTENED. फ्राइटेंड. द फॉक्स वॉज
फ्राइटेंड ऑफ द वॉल्फ, यानी कि जो फॉक्स है, लोमड़ी है, वो भेड़िए से डर गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी द फॉक्स डैश द वॉल्फ टू एन ओल्ड हाउस। फॉक्स जो है वो वॉल्फ को ले गया था एक पुराने घर में, ठीक है। सो व्हाट वी विल पुट हियर, हम इधर कौन सा मिसिंग वर्ड लगाएंगे, जल्दी से गो बैक टू द पेजेस ऑफ द 60 एंड 61। इन पेजेस पे चले जाएं। आपको इन द पेज, इफ़ यू गो टू द पेज 60 ऑफ योर बुक, तो आपको वहाँ पे स्टार्टिंग की सेकेंड लाइन पे ये सेम सेंटेंस मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिसिंग वर्ड है, टुक, ठीक है। सब्जेक्ट भी हो गया द फॉक्स, टुक भी हो गया, टुक हो गया वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट उसका क्या था कि वो वॉल्फ को लेकर गया ओल्ड हाउस में। सो फ्रॉम दिस वे यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग द मिसिंग वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट देखें जी, द वुमेन वॉज डैश केक्स ऑन अ शेल्फ। वुमेन जो है वो क्या कर रही थी, वो शेल्फ के ऊपर केक को रख रही थी। अब इसके लिए भी यू हैव टू गो बैक टू योर रीडिंग पेजेस 60 और 61. In the page 60 you will find the same sentence. The woman was dash cakes on a shelf. तो क्या आएगा कि जो औरत है ना, जो वो लेडी थी, वो रख रही थी, was putting cakes on a shelf. Next sentence is the woman went out dash, यानी कि women जो थी वो केक रख के किधर गई थी, किचन से चली गई थी, ठीक है। द वुमेन वेंट आउट ऑफ द किचन, किचन से चली गई थी। नेक्स्ट है द फॉक्स जम्प्ड डैश, फॉक्स ने जंप किया थ्रू द स्मॉल विंडो, ठीक है। द फॉक्स जम्प्ड, फॉक्स ने जंप किया थ्रू द स्मॉल विंडो, उस छोटी खिड़की के ज़रिए, ठीक है। फ्रॉम दिस वे यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड the answers are given here, which you can see here in the video, in the picture. Frightened, took, putting of the kitchen through the small window. Alright students, from this way you have to complete the sentences on your book page number 62, but make sure that you are reading the pages as well from the unit 7 Clever Fox and Greedy Wolf. Then you will be able to put the words in the given spaces, okay. And the homework is do question number 2 on page 62. आपको ये क्वेश्चन करना है by learning the spellings and by reading the story as well, okay students. Well, for today's lecture this question is enough for today. So everyone, please make sure that you are reading or you are doing the work on your book, okay. Take care of yourself, enjoy yourself, take care.